ओके, तो चलिए नेक्स्ट डिसीज की ओर बढ़ते हैं, विच इज कॉल्ड एज द बैक्टीरियल बिलाइट्स ऑफ द बीन्स। ठीक है, जो बीन्स का बैक्टीरियल बिलाइट है उसके बारे में हम बात करते हैं अभी। इट्स अ सेकंड डिसीज। ठीक है, क्रूसिफर वाला फर्स्ट डिसीज देख लिया, उसको आप डिटेल में याद रखिए। द सेकंड डिसीज इज कॉल्ड एज द बैक्टीरियल बिलाइट्स ऑफ द बीन्स। ओके, नाउ सी देयर आर थ्री बिलाइट्स ऑफ द बीन्स। एक्चुअली वहां पे तीन बिलाइट्स है बीन्स के, विच आर caused by the bacteria. First is called as the common belite, which is caused by the Xanthomonas campestris. Then second is called as the hollow belite, which is caused by the Pseudomonas syringae. ठीक है, and the bacterial brown spot, which is caused by the Pseudomonas syringae in that variety again syringae. Okay, so there are three common bacterial bilites. ठीक है, बैक्टीरियल बिलाइट्स वहां पे तीन है। पहला है कॉमन बिलाइट, डिसीज के नाम याद रखिए क्योंकि एट द सेम टाइम हम तीन डिसीज यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि ये जो तीनों बिलाइट है ये नियरली सेम सिम्टम्स दिखाते हैं और इनके पॉजिटिव एजेंट बस थोड़े डिफरेंट है। तो कॉमन बिलाइट का जो पॉजिटिव एजेंट है इज कॉल्ड Xanthomonas campestris, और हॉलो बिलाइट का जो ये है causative agent is called as Pseudomonas syringae. ठीक है, and the bacterial brown spot is also caused by the Pseudomonas syringae, but just the variety is different. Okay, so there are three bilites of the beans. यहाँ पे एट द सेम टाइम तीन बिलाइट हम कवर करेंगे। दैट इज व्हाई यूपीएससी कैन आस्क यू अबाउट ओनली द कॉमन बिलाइट और द होलो बिलाइट, ओके, और द बैक्टीरियल ब्राउन स्पॉट। Okay, so common bilite is caused by the Xanthomonas campestris, hollow bilite is caused by the Pseudomonas syringae, and the bacterial brown spot is also caused by the variety of the Pseudomonas syringae. Okay, now consider these three. All these three diseases occur wherever beans are grown and shows the similar symptoms. ठीक है, जहां पे भी beans grow होते हैं वहां पे तीनों diseases हमें देखने को मिलते हैं, and all this cause the very similar symptoms. सब में जो symptoms आते हैं nearly एक जैसे होते हैं। Now the three diseases affect mainly the leaves, pods, stems and seeds. Okay, जो main portion जो है plants के जिनको ये affect करते हैं, these are called as the leaves, pods, stems and seeds in a similar way. Okay, and usually impossible to distinguish from one another on the basis of the symptoms. ठीक है, सिर्फ symptoms देखने के basis पे हम इन तीनों को इवन सेपरेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि नियरली उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। ये लीव्स को, पॉट्स को, स्टेम्स को और सीड्स को अफेक्ट करते हैं, और ये जो तीनों के तीनों डिसीज है एक जैसे सिम्टम दिखाने की वजह से वी हार्डली डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वन अनदर। एक दूसरे से उनको हार्डली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। ओके, जस्ट एट द बिगिनिंग अगर हम पॉजिटिव एजेंट की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द पॉजिटिव एजेंट, these three have the different positive agents. For the common bilite we have Xanthomonas campestris, for hollow bilite we have the Pseudomonas syringae, and for the bacterial brown spot we have the another variety of Pseudomonas syringae. Okay, and when we talk about the symptoms, they show all the similar kinds of symptoms, and that is why it is impossible to distinguish them depending upon by judging the symptoms only, and they generally affect the leaves, pods, stems and seeds of the plants. Okay, now see the symptoms. What are the symptoms shown by these bilites? See, symptoms appear first on the lower side of the leaves as a small water soaked spots. ठीक है, जो leaves होते हैं उसकी जो लोअर साइड होती है, लोअर साइड में जो तो होते हैं वाटर सोक स्पॉट्स वहां पे सबसे पहले दिखने लगते हैं। ठीक है, दीज आर द अर्लियर सिम्टम्स ऑफ द डिसीजेस। जब भी वहां पे बैक्टीरियल बिलाइट कॉज होता है, सो द लोअर साइड्स ऑफ द लीव्स जो होते हैं वो स्मॉल वाटर सोक स्पॉट्स वहां पे दिखते हैं। नाउ दीज स्पॉट्स एनलार्जेस विद द टाइम। ठीक है, यहाँ पे जो टाइम के साथ जो है स्पॉट्स क्या होते हैं, एनलार्ज होते हैं, एंड दे कोलेसेस, दैट इज द फॉर्म द मास। ठीक है, ये स्मॉल ऐसे कोलेसेस क्रिएट करते हैं, एंड दे क्रिएट द स्मॉल मासेस। दीज स्मॉल मासेस आर कॉल्ड एज द कोलेसेस। सी, and they form the large areas that later become necrotic. बाद में वो क्या होते हैं, नेक्रोटिक होते हैं। that is the loss of tissue. necrosis is the loss of tissue or the dying of tissue. ठीक है, जब टिश्यू की डेथ होती है तब उसे क्या कहते हैं, नेक्रोटिक, नेक्रोसिस कहते हैं। so the lower parts of the leaves first shows the symptom as the small water soaked spots, but these are spots as the disease progresses it forms the coalesces, that is the mass of the bacterial mass of the bacteria is created there, and this mass of the bacteria is responsible for the necrosis, that is the loss of the tissue or the death of the tissue. Starting at the beginning you have to write it down that the lower side of the leaves shows the water soaked spots, after that the coalesces is formed, and after that due to this coalesces the necrosis occurs. Okay, now the second symptom, the bacteria also enter the vascular tissue. After that it enters the vascular tissue of leaves and spread into the plants. Okay, the vascular tissue, of course the xylem and the phloem, they spread to the xylem and phloem of the leaves as well as they spread to the stem. In a common bilite and the bacterial brown spot, the infected area which is surrounded by the narrow zone of the bright yellow tissue turn brown and become necrotic. ठीक है, जो तीन डिसीजेस है उनमें से जो दो डिसीजेस है which is called as the common bilite and the bacterial brown spot, इनमें क्या होता है कि whatever the infected area is there which is surrounded by the narrow zone of the bright yellow tissue, ये टर्न हो जाता है into the brown. ओके, ब्राउन कलर का वहां पे जो है कलरेशन दिखता है अराउंड दी इन्फेक्टेड टिश्यूज। ठीक है, जो इन्फेक्टेड वहां पे सराउंडिंग एरिया होता है वास्कुलर टिश्यू का या फिर स्टेम का, विच इज जनरली टर्न इनटू द ब्राइट येलो टिश्यू, देन लेटर इट टर्न्स इनटू द ब्राउन।
ओके, ब्राउन में वो कन्वर्ट हो जाता है, बट दिस इज नॉट सीन इन द होलोबिलाइट, ठीक है। होलोबिलाइट में हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, होलोबिलाइट में ये नहीं है, हमें कौन सी डिसीज में देखने को मिलता है, इट्स कॉल्ड ब्राउन स्पॉट में ये देखने को मिलता है, और जो कॉमन बिलाइट है उसमें ये देखने को मिलता है, जिसमें जो इन्फेक्टेड एरिया होता है, जो ब्राइट येलो टिश्यू का दिखता है, इट टर्न्स इनटू द ब्राउन कलर, ठीक है, ब्राउन कलर में वो टर्न हो जाता है, एंड इट रैपिडली बिकम्स नेक्रोटिक, दैट इज द टिश्यू, वहां पे कंटिन्यूअसली डेथ होती रहती है टिश्यूज की, ठीक है। सो ये डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है बिटवीन द थ्री डिसीजेस। थोड़ा सा अगर हम केयरफुली सिम्टम को जज करते हैं तो वहां पे कॉमन बिलाइट में और ब्राउन स्पॉट जो डिसीज है उसमें जो डिसीज कॉज होने के बाद ब्राइट येलो कलर के टिश्यू वहां पे क्रिएट होते हैं, दे लेटर टर्न्स इनटू ब्राउन कलर, ठीक है, और रैपिडली वो नेक्रोटिक होने लगते हैं। See, the several spots are created there and produce the large areas, dead areas of the various shapes. ठीक है, जैसे हमने कहा कि नेक्रोसिस होता है, okay, necrosis is occurring there and that is why the tissues are continuously dying. So they create the dead areas. Okay, what they create the dead areas can be the large dead areas can be seen of the various shapes. Okay, different shapes के dead areas वहां पे later stages of the disease में देखने को मिलते हैं. Now in the holobilite, a large, wider hollow like zone of the yellowish tissue of 10 mm or more in a width form outside the water soak area, giving leaves a yellowish appearance. ठीक, see the hollow bilite, okay, hollow bilite में जो होता है वो brown color में convert नहीं होता, it does not convert into the brown spot, but it remain as a yellowish appearance. Okay, so whatever the water soak area, whatever the small spots are created there, all these remain as a yellowish color spots in the hollow bilite. But in the common bilite and the brown spot, they got converted into the brown color. Okay, so depending upon the symptoms, we can distinguish these. If you observe carefully, we can even distinguish these the three bilites depending upon their different symptoms. Okay, एक जो different symptom हमें वहां पे देखने को मिलता है, that different symptom is that the hollow bilite जो होता है वो उसका जो 10 mm के अराउंड जो येलो वहां पे वाटर सोक स्पॉट्स तैयार होते हैं, these spots remain yellowish in appearance. Okay, but on the other hand, in the common bilite and the brown spot, it got converted into the brown color. ठीक है, ब्राउन कलर में वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट आपने क्या करना है यहाँ पे याद रखना है। सी, ऑल डिसीजेस प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल सिम्टम्स ऑन द स्टेम, पॉट्स एंड सीड्स, बट व्हेन बैक्टीरियल एक्सुडस इज प्रोड्यूस ऑन देम, इट इज येलो इन द कॉमन बिलाइट। सी, अगेन देयर इज अ सेकंड डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट बिटवीन दीज डिसीजेस, दैट ऑल दीज आर ऑल्सो शोइंग द सेम सिम्टम्स ऑन द स्टेम, पॉट्स एंड द सीड्स, बट व्हेन देयर इज अ बैक्टीरियल एक्सुडस, ठीक है, जब वहां पे बैक्टीरियल एक्सुडेट होता है, दैट मींस बैक्टीरिया आर कमिंग आउट ऑफ द प्लांट, ठीक है, बैक्टीरिया जो प्लांट्स के बाहर आने लगते हैं, व्हेन दे आर कमिंग आउट ऑफ द प्लांट, दे शोज द येलो कलर इन द कॉमन बिलाइट। कॉमन बिलाइट में जब वो एक्सुडेट बाहर आता है, दिस एक्सुडेट विच कंटेन्स द प्लांट सैप एज वेल एज द बैक्टीरियाज, ठीक है, प्लांट सैप प्लस बैक्टीरिया, ये जो एक्सुडेट बाहर आता है, दिस एक्सुडेट इज ऑफ द येलो कलर इन द कॉमन बिलाइट एंड लाइट क्रीम कलर और द सिल्वर कलर इन द हॉलो बिलाइट एंड इन द बैक्टीरियल ब्राउन स्पॉट, ठीक है। हॉलो बिलाइट में और ब्राउन स्पॉट में ये जो है लाइट क्रीम और सिल्वर कलर का होता है, बट इन द कॉमन बिलाइट इट इज ऑफ द येलो कलर। किस कलर का होता है वो? येलो कलर का होता है। सो द बैक्टीरियल एक्सुडस which is the combination of the plant sap plus the bacteria, when it is coming out of the plant, it shows the yellow color in the common bilite. Common bilite में येलो कलर शो करता है, and in the light cream and silver color is shown by the hollow bilite and the bacterial brown spot disease. ओके, सो बैक्टीरियल ब्राउन स्पॉट जो डिसीज है या फिर हॉलोबिलाइट जो डिसीज है, जब उसमें बैक्टीरियल एक्सुडस जब बाहर आता है, इट इज ऑफ द लाइट क्रीम और द सिल्वर कलर, बट व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द कॉमन बिलाइट, इट इज ऑफ द येलो कलर, ठीक है। तो ये जो डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है, ये व्हाट एवर द डिफरेंट सिम्टम्स व्हिच आर शोन इन द लेटर स्टेजेस ऑफ द डिसीजेस, यू शुड रिमेंबर देम केयरफुली। ओके, जब भी आपको डिसीजेस के सिम्टम वहां देने हो तो एक साथ आपको देने वहां पे डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट आपको करते आने चाहिए, ताकि जब कॉमन बिलाइट पूछा जाए तो सिर्फ उसी के सिम्टम देने, जब हॉलो बिलाइट पूछा जाए तो सिर्फ उसी के सिम्टम देने। ओके, नाउ सी ऑन द लेटर stages on the stem, the water soaked, sometimes sunken lesions are formed that are gradually enlarged longitudinally and turns brown. Okay, whatever the spots which are created, lesions which are created on the stems, these lesions later they create the larger areas. Okay, and they often turn brown in color. Okay, often splitting at the surfaces पे ओके आने लगते हैं, split भी होने लगते हैं like this. All these larger spots are also split at the surfaces and giving out the bacterial exudus. So the bacterial exudus is also coming out from the stem as well. Stem से भी जो है ये bacterial exudus क्या करता है, बाहर आता है। So जब ये डिसीज स्टेम तक पहुंचा है, when it reach to the stem, the sunken lesions enlarges on the stem and they turn brown, and with turning into the brown, this also split and the bacterial exudus is come out from the stem as well.
Okay, now consider such lesions are most common near the first node. This is very important. This is the peculiar symptom which is shown by these bacterial bilites. Okay, generally such lesions are can be seen very much concentrated on the first node. Okay, I think you must have familiar about the nodes and internode concept in the plants. ठीक है, प्लांट्स में नोड्स और इंटरनोड्स क्या होते हैं ये आपको जरूर पता होंगे. नोड्स एंड इंटरनोड्स वहां पे प्लांट्स में होते हैं, और जो नोड्स होते हैं, जो फर्स्ट नोड जो होता है, ठीक है, जनरली जब हम बांबू का स्टेम देखते हैं या फिर सैकरम का जब आप स्टेम देखते हो तो उसमें आपको ऐसे नोड्स और इंटर नोड्स दिखते हैं. दिस पोर्शन आर कॉल्ड एज दी नोड्स, ठीक है, एंड इन बिटवीन पोर्शन आर कॉल्ड एज दी इंटर नोड. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट नोड होते हैं एट द बिगिनिंग, ठीक है, यहाँ पे प्लांट है, यहाँ पे जो फर्स्ट नोड होता है जनरली यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं. ठीक है, ऑल दिस लीजन्स, ओके, सच लीजन्स आर कॉन्सेंट्रेटेड एट द फर्स्ट नोड वेयर दे गर्डल द स्टेम. ओके, जहां पे वो स्टेम को क्या कर देते, गर्डल कर देते, यूजुअली एट अबाउट टाइम व्हेन द पॉट्स आर द हाफ मैच्योर. Okay, what is the timing? When the pods are the half mature, at this time this stem is got girdle at the first node of the plant. Okay, जहां पे जो स्टेम है, फर्स्ट नोड जो है उसका वहां पे गर्डल कर दिया जाता है. यूजुअली जब स्टेम जो पॉड्स होते हैं दे आर हाफ मैच्योर. नाउ गर्डलिंग द स्टेम, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट सिम्टम, बिकॉज गर्डलिंग द स्टेम लिटरली मीन्स द स्टेम विल ब्रेक आउट फ्रॉम दिस लीजन. ओके, जहां से ये जो फर्स्ट नोड है ब्रेक हो सकता है, एंड आफ्टर द ब्रेकिंग दिस होल ये जो प्लांट होता है ये टूट सकता है ऊपर से. ओके, सो ये जो सिम्टम है विच कॉजिंग द ग्रेटर लॉस इन द एग्रीकल्चरल यील्ड इज the lesions which are formed on the stem, they are concentrated at the first node and they girdle the stem, and this usually occur when the pods are half mature. Okay, जब वहां पे half maturing हुआ है pods का. Now see the weighted plant ऑफन ब्रेक्स एट द लीजन. ऑफकोर्स ये तो फिर होना ही था. देखिए, अगर ऐसा एक स्टेम है जहां पे नोड्स और इंटर नोड्स है, ठीक है, यहाँ पे नोड्स में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं और बीच में इंटर नोड्स है. अब ये फर्स्ट नोड है, ठीक है, इस फर्स्ट नोड पे यहाँ पे गर्डलिंग हुआ है ऐसे इन बैक्टीरियाज का. ठीक है, यहाँ पे लीजन्स फॉर्म हुए, बहुत सारे यहाँ पे स्पॉट्स तैयार हो गए, स्टेम गर्डल हो गई और ऊपर ये ऐसा प्लांट है, तो स्टेम यही से ब्रेक होगी और ये नीचे गिर जाएगा. ओके, सो द वेटेड प्लांट, ऊपर का जो वेट होगा प्लांट का, ये जो फर्स्ट नोड है ये उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा एंड इट विल ब्रेक. ओके, एंड जैसे ही ब्रेक होगा तो प्लांट ऊपर से नीचे वहां से गिर जाएगा. ओके, सो जनरली ये प्लांट छोटे छोटे होते हैं. ये जो बीन्स के प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे होते हैं. ना ये जो बीन्स के प्लांट्स होते हैं, अगर यहाँ पे फर्स्ट नोड ब्रेक होता है उनका आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ द फर्स्ट नोड ड्यू टू द लीजन्स एंड गर्डलिंग ऑफ द स्टेम, द वेटेड प्लांट ऑफन ब्रेक्स एट दिस लीजन. ऑन द पॉट्स द वाटर सोक्ड स्पॉट्स आल्सो डेवलप द एनलार्ज एंड द रेडिश एंड दे टर्न रेडिश इनटू विद द एज. ओके, अगर पॉट्स की बात करें तो पॉट्स में भी ये लीजन्स तैयार करते हैं, और लीजन्स जब तैयार होते हैं पॉट्स पे तो ये जो लीजन्स होते हैं ओवर द एज रेडिश में कन्वर्ट हो जाते हैं. और जैसे हमने बात की कि यहाँ पे हाफ जो मैच्योर था पॉड, तभी ये स्टेम ब्रेक होने लगती है, एंड दैट इज व्हाई दीस पॉड्स आर नेवर कंप्लीटली मैच्योर्स इन दीस प्लांट्स एंड हेंस इट कॉजेस द ग्रेटर एग्रीकल्चरल लॉस. इस वजह से एग्रीकल्चरल लॉस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है इन प्लांट्स में. Now see, often the vascular system of the pods become infected. Pods में जो vascular system होता है, मतलब xylem और phloem जो होते हैं pods में, वो भी क्या हो जाते हैं, they are also get infected and it resulting in the infection of the seeds through the connection with the pods. ठीक है, आप जानते हो इस प्रकार का पॉड होता है और पॉड के अंदर ऐसे सीड्स होते हैं. तो ये जो सीड्स होते हैं which are connected to the pods, ये इन सीड्स में भी जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है, स्प्रेड होता है. ओके, the seeds may show some degree of shriveling. ठीक है, वहां पे श्रिवलिंग होता है, वहां पे जो नॉर्मल जो सीड होता है, सीड का जो शेप होता है इट श्रिंक्स. ठीक है, वहां पे जो नॉर्मल अगर सीड का शेप ऐसा है तो वो थोड़ा श्रिंकिंग दिखाता है, इस प्रकार का वो हो जाता है. इट शोज द श्रिवलिंग प्लस इट आल्सो शोज द डिस्कलरेशन. ओके, व्हाट एवर द नेचुरल कलर इज देयर फॉर दैट सीड, दिस नेचुरल कलर इज रिमूव्ड. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द टाइमिंग एंड द डिग्री ऑफ इन्फेक्शन ऑफ कोर्स. ठीक है, जितना भी टाइमिंग होगा या जिस टाइमिंग का डिसीज होगा या फिर डिग्री ऑफ इन्फेक्शन जितना होगा, ऑन दैट डिपेंडिंग अपॉन दैट देयर डिस्कलरेशन ऑकर्स. ओके, नाउ द सिमिलर सिम्पटम्स इज आर आल्सो कॉज्ड ऑन द पीज एंड सोयाबीन्स ऑफ द टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द सुडोमोनास. ओके, दो डिफरेंट स्पीसीज है सुडोमोनास की व्हिच आर कॉजिंग डिसीज इन द पीज एंड सोयाबीन. दिस आल्सो शोज द सिमिलर काइंड ऑफ द सिम्पटम. Okay, so seeds shows the shriveling plus the discoloration in the depending upon the timing and the degree of infection. Okay, so all these are the symptoms which are shows the typical characteristics of the bacterial bilites in the beans. Okay, now consider the development of the disease, how the disease develops, how the bacterial bilites of the bean develops within the plants or it transmit to the other plants. See, in all the three bacterial bilites, the bacteria overwinter in the infected seeds and stems. Okay, that means it can live, it can cover whole winter season by infecting the seeds and the stems. Okay, infected जो seeds होते हैं और जो stems होते हैं उनमें over winter कर सकता है. These seeds and stem can carry these bacteria for the over the winter. Okay, now see, from the seed these bacteria then spread to the cotyledons. Okay, see, as you know, the process of germination of the seed got converted into the cotyledons. So
the cotyledons which are formed after the germination of the seeds. So from these seeds, these bacteria then transfer to the cotyledons, and from these cotyledons they were spread to the leaves. Okay, so after the cotyledon, the first structure formed in the plants are the leaves. So these leaves also carry this bacterial infection, and from these leaves they enter into the vascular system, that is to the xylem and phloem. Okay, so the bacteria which are present in the seed, they first got transferred to the cotyledons, and from cotyledons they transferred to the leaves, and from leaves they got transferred to the xylem and the phloem. Okay, and it causes the systemic infection. That means the infection is transferring throughout the plant, producing stems and the leaf lesions. उसके बाद फिर stem पे भी हो जाता है, leaf पे भी जाता है, and after that the lesion starts. ठीक है, और उसके बाद हमने देखे कि ये lesions जो है कैसे bacterial bilites के हिसाब से कैसे डेवलप होते जाते हैं, and they shows the different kinds of symptoms there. Okay, so जनरली जो सीड्स होते हैं, सीड्स में ओवरविंटर करते हैं बैक्टीरिया. व्हेन द सीड्स आर जर्मिनेटिंग, these seeds transfer the disease from seed to the cotyledons, and from cotyledon it goes to the leaves, and from leaves it goes to the vascular system. In this way, the stem and leaf and the whole plant is got infected by the these bacterial bilites, and they produces the lesions on the stems and the leaves. Okay, now consider internally, when the bacteria is present inside the plant, the bacteria moves between the cells and form the cavities. Okay, हम जानते हैं कि सेल टू सेल जो है वहां पे बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन होता है, एंड व्हेन दे ट्रांसमिट फ्रॉम सेल टू सेल, दे नेक्रोसिस प्रोग्रेसेस. ओके, वहां पे टिश्यू का डेथ होते हैं. जो टिश्यू की डेथ होती है, दे क्रिएट द कैविटीज. व्हेन इन द xylem, when these bacteria are present in the xylem, they are rapidly multiply. Okay, because xylem also contains the water and provides the good environmental condition for the bacteria to grow and multiply. So here the bacteria multiply rapidly and they move upward and downward in the vessels. Okay, and into the parenchyma. ठीक है, वहां पे वेसल्स में और अपवर्ड वो ग्रो होते हैं, उसके बाद में पैरेंक्राइमा में चले जाते हैं, एंड आफ्टर क्रिएटिंग देयर सफिशिएंट नंबर दे कॉज द नेक्रोसिस, एंड आफ्टर द नेक्रोसिस दे ऊज आउट थ्रू द स्प्लिट टिश्यूज. ठीक है, देखिए ये इस प्रकार से होता है कि एक बार अगर आप वास्कुलर टिश्यू में वो आ जाते हैं, इनसाइड द xylem एंड phloem दे फाउंड द फेवरेबल कंडीशंस फॉर देयर ग्रोथ. सो द नंबर ऑफ द बैक्टीरिया इंक्रीजेस कॉन्स्टेंटली. ठीक है, रैपिडली उनका नंबर बढ़ता है, एंड ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन द नंबर द नेक्रोसिस ऑकर्स. और जैसे ही नेक्रोसिस वहां पे होता है, देयर इज अ ब्रेक इन द टिश्यू. ओके, टिश्यू क्या होता है, वहां पे ब्रेक होता है, एंड आफ्टर द ब्रेकेज ऑफ द टिश्यू, these bacteria ooze out from these tissues. That is the tissue. When the tissue is broken down, these bacteria come out in the surrounding. Okay, जो plants के बाहर की surrounding होती है, and they come out to this surrounding and go in the stems or the leaves through the stomata or the wounds to the other plants as well. जो बाकी plants होते हैं उनके stomata से या फिर wound से ये other plants को फिर बाद में infect कर सकते हैं. So this is how the disease transmits. ठीक है, plants के अंदर disease कैसे transmit होता है और उसके बाद बाहर आने के बाद दूसरे plants में कैसे transmit होता है, this is all about. ठीक है, about that. ठीक है, उसके बारे में ये सब कुछ है कि जब इंटरनली वो स्प्रेड होता है, हाउ द बैक्टीरिया स्प्रेड इंटरनली, फ्रॉम इन्फेक्टेड सीड इट गोस टू द cotyledon, from cotyledon it goes to the leaves, and from leaves it goes to the vascular tissue, that is xylem and phloem, where it multiply rapidly and cause the necrosis. After the necrosis, that is the breakage of the tissue, these bacteria ooze out from the plant and they spread to the surrounding plants through the stomata or the wounds. Okay, तो ये स्प्रेड किस प्रकार होता है ये आपको याद रखना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोल मेजर्स. हियर आर द 3 कंट्रोल मेजर्स. द फर्स्ट इज द यूज ऑफ द डिसीज फ्री सीड्स. ऑफ कोर्स सीड्स आपको कैसे यूज करने हैं, डिसीज फ्री यूज करने हैं. उसके बाद 3 ईयर क्रॉप रोटेशन इज देयर. 3 ईयर का क्रॉप रोटेशन वहां पे होना चाहिए, एंड आफ्टर दैट यू कैन आल्सो स्प्रेड द कॉपर फंगिसाइड टू कंट्रोल दिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ओके, सो इन तीनों का इस्तेमाल करके आप बैक्टीरिया को जो है क्या कर सकते हो, बैक्टीरिया को स्प्रेड होने से आप बचा सकते हो इन द पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल फील्ड. Okay, so this is how there are the bacterial bilites of the beans. In that we have studied the 3 examples. Okay, the common bilite, सबसे पहला example उसमें था common bilite वाला, and the second example was of the hollow bilite, right, and the third example was the brown spot. ठीक है, so all these diseases are caused by the various species of the bacteria. Thank you very much for being with me. See you in the next one.